Hello everybody. So today we are going to discuss the DPP number 1 of circular motion. Myself Hitesh Jain sir, and let's just begin without any delay. So as we know, he is the leader of our physicsaholic team, Mr. Pratik Jain sir. Right? If you want to be notified by our channel for all the new videos, just click to the subscribe button and don't forget to press on to the bell icon for all section. Also follow us on Instagram, that is Physicsaholic Pratik. All the links are given in description box as well. Don't forget to join our Telegram channel, which is for NEET Physics and IIT Physics both. There you can find more new materials and new things for the examination. So don't forget to subscribe it right now. चलिए, तो फिजिक्स का डीपीपी नंबर 1 है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बेसिस पे ये डीपीपी हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल आता है, ठीक है। सबसे पहले सवाल में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। ओमेगा का इक्वेशन दिया है, एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो हो जाए वो टाइम निकालना है। तो हमको पता है हमको डी ओमेगा बाई डी टी करना होता है, जो एंगुलर एक्सीलरेशन देता है अल्फा। तो इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो दिस विल बी 1.5 माइनस दिस विल बी 60 एंड प्लस दिस विल बी 0, राइट एवरीबडी। सो आई वांट अ टाइम व्हेन दिस एंगुलर एक्सीलरेशन इज जीरो, मींस ये अल्फा जीरो हो जाए, तो अल्फा को जीरो कर देंगे। तो हियर वी कैन राइट 1.5 इज इक्वल टू 60 एंड टी विल बी इक्वल टू 1.5 by 6. It means 1 by 4, that means 0.25 second, and this answer is matching with option number A, so option A is correct. Moving further, next question is over here, and here we have given with angular acceleration alpha is equal to this much, where t is the time, a b are the constant. If the initial velocity was angular velocity was omega naught, equation for the final angular velocity or angular speed, we need equation for the final angular speed. So what we know that alpha is nothing but d omega by dt. It is 4at cube minus 3bt square. Now we can write it as d omega by dt, and will be equal to 4at cube minus 3bt square. Now what we have to do, we have to just translate this dt over there. So it will be dw will be equal to how much? Dw will be equal to 4at cube into dt minus 3bt square into dt. Now we just have to integrate all the sides with proper limits. But right now our limit will be, t's limit will be 0 to t, and limit of d omega will be, or omega will be from omega naught to something omega, because at time t equal to 0 the angular speed was omega naught, don't forget. So it will be omega minus omega naught equal to, it will be a t to the power 4 minus v t cube. After integrating, this 3 will be cancelled out with this t to the power 4 by 4 term, and this 3 will be cutted with t to the power 3 by 3 term. So it will be like this, and after solving this, omega will nothing but omega naught plus a t to the power 4 minus b t cube. This will be the final answer, and it is matching with, I think, option number B. Yes, okay. So moving ahead, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। मतलब 0 से शुरू करते और 20 रेडियन पर सेकेंड अटेन कर लेता है 5 सेकेंड में। तो अल्फा क्या होता है, अगर अल्फा कांस्टेंट माने तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम, यही तो होता है अल्फा। तो ओमेगा इनिशियल था 0, अटेंड कर लेता है पूरा, और ओमेगा रेडियन था 20 और 5 सेकंड लगा था, तो अल्फा की वैल्यू सबसे पहले तो 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। हमारे पास अल्फा आ गया, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ रिजोल्यूशन मेड बाय व्हील। ऐसा करते करते उसने कितनी बार घूम लिया होगा, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है। ये सब अपना सेम टू सेम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा नॉट 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं हाफ, अल्फा की वैल्यू है 4 और टी स्क्वायर है मतलब 5 सेकंड, मतलब कितना 25। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 रेडियन घुमा है। तो 50 रेडियन में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, है ना। तो उसके लिए 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थीटा डिवाइड बाई 2 पाई हमारा नंबर हो जाएगा।
तो नंबर निकालने के लिए थीटा डिवाइड बाई तो 50 डिवाइड बाई 2 पाई हम लोग कर लेंगे तो 25 बाई पाई होगा, क्योंकि ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पर। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विथ कांस्टेंट ओमेगा वेरीज विथ टाइम एज। मतलब हमारे पास ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में सपोज दिस इज द सेंटर और एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सपोज ऐसा हम मान लेते हैं कि भाई वो पार्टिकल जो है वो यहाँ कहीं पर था t इक्वल टू 0 पे सपोज, ठीक है, और t इक्वल टू टी पे सपोज पार्टिकल यहाँ कहीं पर पहुंच जाता है t इक्वल टू टी पे, तो वो कुछ ओमेगा टी एंगल चल लिया होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है कब, जब ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो कुछ ओमेगा टी एंगल पक्का चल चुका होगा ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब अगर ये इतना चल चुका होगा तो हमको बताना है कि इसका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो बड़ा आसान है, मैं क्या मान लूंगा कि सपोज ये वाला ए है रेडियस, मान क्या लूंगा है ही, इसलिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं निकालूंगा कि इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर था और फाइनली यहाँ पर है। तो इनिशियली अगर मैं इस तरफ को एक्स एक्सिस मान लूँ आई कैप और इस तरफ को जेड वाई एक्सिस मान लूँ जे कैप वाला, तो अब अगर मुझे देखना है कि इनिशियली जब वो यहाँ पर था तो वो टोटल उसका जो मतलब पोजीशन वेक्टर था वो ऐसा कुछ था कि आर इनिशियल जो था पार्टिकल का वो था ए आई कैप, और फाइनल अगर आप देखोगे ना फाइनल, तो फाइनल ये वाला आई हो जाएगा और ये वाला जे हो जाएगा, उसका इतना ऊपर है, तो ये वाली चीज जो है वो ये है ए कॉस ओमेगा टी, और ये वाली जो चीज है ये ए साइन ओमेगा टी है, राइट। तो ए आर फाइनल लिख देते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं आर फाइनल ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। सो दिस विल बी द फाइनल पोजीशन वेक्टर। और हमको पता है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा ए कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस 1 आई कैप प्लस देखो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो आई के साथ आई घट गया है ना, और प्लस ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा 101% ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इस पोजीशन वेक्टर से अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे इस टर्म को और इस टर्म को स्क्वायर करके रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर करके रूट कर लेते हैं बाबा, कर लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये पूरा अंदर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जैसे ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा का क्या क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये होता है, ठीक है, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, ठीक है, 1 माइनस 2, अगर ऐसा लग दूंगा मैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर से आ सकता है। तो चलो अब करके देखते हैं। सबसे पहले तो ए स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल करके ए बन जाएगा, इधर रूट में जो भी बच रहा है। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा अगर हम लोग लिख देंगे तो कुछ खास अपने को मिलने वाला नहीं है। यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको ब्रेकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम ब्रेकेट ओपन करो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, राइट, प्लस 2 ए बी 2 कॉस ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इतना बचेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है, देखो अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बस आपको सब्र करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा ए अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, इस तरह का कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग ए अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको 2 को कॉमन निकाल लेंगे ना, तो ये 1 प्लस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, राइट, इस तरीके से हो जाएगा। अब कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा a इंटू अंडर रूट 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब ओमेगा टी बाई 2 माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, बेसिकली 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये 4 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2a और ये कॉस ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो भी गड़बड़ किया क्या अपन ने। अच्छा, यहाँ पर एक माइनस लगाना हम लोग भूल गए, सॉरी, हियर इट इज़ अ माइनस, यहाँ पर एक माइनस है, हम लोगों ने प्लस लिख दिया। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा, ना कि a प्लस बी का। तो ये वाला माइनस है, ठीक है, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन ही है, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और वही वाला माइनस हम लोग देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा इस टर्म को अपन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो माइनस आ गया तो हो जाएगा, कंट्रोल पी ले लेते हैं अपन और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को और क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 ऐसा हो जाएगा। बस अब ये 1 कट जाएगा और यहाँ से अगर आप देखो तो 2 2 का 4 हो जाएगा, बाहर निकाल करके 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a और साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा साइन ओमेगा टी बाई 2। अब बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा करना था, बाकी कोई खास बात नहीं है। बाकी सॉल्यूशन और थोड़ा शिद्दत से अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, कायदे से उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी एक अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आर एंड ऑफ अ वॉच। तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि दोनों के लिए ओमेगा 2 पाई तो सेम होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि मिनट एंड आर एंड हैंड ना, तो मिनट के लिए हम लोग लिख देंगे ओमेगा 1 और आर के लिख देंगे ओमेगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनवर्सली है तो T2 बाई T1 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ T2 मतलब आर एंड के लिए टाइम पीरियड, उसको भी मिनट में लिख देते हैं, तो 60 मिनट हो जाएगा। आर एंड के लिए जो टाइम पीरियड होता है, सॉरी, वो 12 आवर होता है। देखो जो घंटे वाला जो कांटा रहता है ना, वो एक चक्कर कितने पे लगाता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में समय, तो 12 घंटे में लगाता है, तो 12 आवर लिख देता हूँ, ठीक है। T2 मतलब दूसरे वाले का, मतलब आर एंड वाले का है, T2 तो आर एंड वाले का है और T1 जो है मिनट एंड वाले का। और मिनट वाला 1 घंटे में चक्कर लगाता है, 1 आवर में लगाता है, तो वो ऐसा हो जाएगा। तो 12:1 वाला सी वाला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है t=2 पे, तो बस डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि हमको पता है d थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3t² प्लस 2t प्लस 1 ऐसा आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे t की वैल्यू 2 डाल दो, तो 2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 1, तो 12 4 16 1 17। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से करते जाना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं। बोल रहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस थीटा गिवन है, वेयर थीटा इज इन रेडियन, टी इज इन सेकंड, देन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ओमेगा आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, टी क्यूब क्या आ जाएगा 3t² बाई 60 माइनस 1/4 ऐसा आ जाएगा ओमेगा। अब अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6t डिवाइड बाई 60, ये हो जाएगा। और बस और तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर वैल्यूज वगैरह डाल देते हैं, 5 डाल देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 20 टाइम चला जाएगा, तो बेसिकली ये 5 डाल दूंगा तो ये 25/20 माइनस 1/4 आ जाएगा, तो ये 5/4 आ जाएगा।
-1/4, तो 5/4 -1/4 मतलब मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। तो ओमेगा तो 1 आ गया, और यहाँ पर 5 डालेंगे तो ये 1 जा ये 10 जा, राइट। तो ये 5/10 मतलब ये 1/2 आ जाएगा, तो 1 और 1/2 मतलब बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 4 टाइम्स द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन इन 2 सेकेंड। हमको क्या पूछ रहा है? एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 4 टाइम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन इन 2 सेकेंड, मतलब हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन था, ऐसा बोल रहा है, और फाइनल जो था वो 4 रेडियन हो गया। 4 टाइम्स बोल रहा है ना, 4 टाइम्स द इनिशियल, और टाइम लगाया 2 सेकेंड, तो 1.5 आंसर आ जाएगा अल्फा। अल्फा क्यों? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, यही तो अल्फा होगा। तो फाइनल 2 है, इनिशियल 1 है, तो 1.5। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? एक फैन है जो रोटेट हो रहा है इतने से रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब उसका ओमेगा अगर हम लोग देखें ना, ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 100 रेडियन पर सेकंड। ये बात समझना है आपको, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में ओमेगा नहीं होता, हमेशा रेडियन में होता है। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है, तो 100 में 2 पाई का मल्टीप्लाई करना होता है। देन इट स्विच्ड ऑफ, फिर उसको स्विच ऑफ कर दिया। इट टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप, तो टाइम दिया अपने को 5 मिनट, 5 इंटू 60 मिनट, ठीक है, इंटू 60 सेकेंड, ऐसे दिया हुआ है। नहीं नहीं, 5 मिनट दिया हुआ है ना, 5 मिनट, ठीक है, इतना सेकेंड, ठीक है, इतना सेकेंड हमको दिया हुआ है टाइम। द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, रुकने से पहले कितना रिवॉल्यूशन उसने टोटल लिया होगा। तो ये हमारा ओमेगा इनिशियल है, और हमको पता है 5 मिनट में रुक जाता है, तो कितना रिवॉल्यूशन लेकर के वो रुका होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ना अपने को अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो ओमेगा फाइनली तो 0 हो जा रहा है, और इनिशियली है कितना, 2 पाई इंटू 100 है ना, प्लस अल्फा कितना है, तो अल्फा निकालना है, और टाइम है 5 इंटू 60, तो 5 इंटू 60 ऐसा मैंने कर दिया। अब ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 पाई इक्वल टू, माइनस में ले लेते हैं, 5 इंटू 60 इंटू अल्फा। अब देखो ये कितने बार में जा रहा है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और बेसिकली ये 4 टाइम्स चला जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -4/6 पाई, 4/6 पाई ऐसा आ जाएगा, -4/6 पाई। देखो ऐसा ही है ना, 5 चौक 20, तो यह जगह 4/6 पाई, या फिर लिख सकते हैं -2/3 पाई। ये हमारा अल्फा आ जाएगा, इतना रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये अल्फा है। अब हमसे पूछ रहा है रुकेगा जब वो फाइनली, तो कितना कितना घूम चुका होगा, टोटल कितना रिवॉल्यूशन इसके हो चुके होंगे जब वो रुक गया होगा। तो कौन सा भी फॉर्मूला अब आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको अल्फा मिल चुका है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, कितना थीटा घूमने के बाद वो रुका। तो ओमेगा स्क्वायर फाइनली तो 0, इनिशियली इतना, तो ये जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁴ कर देता हूँ, इसको भी स्क्वायर कर दिया। प्लस को माइनस लिख दे रहा हूँ 2, क्योंकि अल्फा माइनस में, इंटू 2/3 पाई इंटू थीटा। इसको उधर घुमा देंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये इधर चला जाएगा, तो 4 पाई तो कट जाएगा यहाँ से, 4 पाई, और ये आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी
ये उधर है 10⁴ तो उधर है, पाई भी उधर है, और ये वाला 3 उधर चला जाएगा, तो 3 पाई इंटू 10⁴ हो जाएगा। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, इट विल बी 3 पाई इंटू 10⁴। ठीक है, इतना। अभी लेकिन हमको पूछ रहा है कितना रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन मतलब हमको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ता है। पहले भी ऐसा किया अपन ने, तो टोटल नंबर निकल आता है कि कितने चक्कर घूमने के बाद रुका, तो पाई पाई यहाँ से चला जाएगा, तो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁴, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻³ मतलब 15,000 चक्कर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी तरीके से दिया हुआ है। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ फैन इज दिस, अल्फा इज इक्वल टू -3/2t², मतलब ये रिटार्डेशन है टाइम के साथ, नहीं रिटार्डेशन नहीं बोल सकते, टाइम के साथ वो कम हो रहा है। वो जो एंगुलर एक्सीलरेशन वो वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल होता है तो वो सब फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपन, जो अभी तक अपन लगाते आ रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ω0 + α/t, ये सब नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, अल्फा दिया हुआ है -3/2t², एट द इनिशियल मोमेंट इट्स एंगुलर वेलोसिटी वाज 10 रेडियन/सेकंड एंड हैज एन एंगुलर पोजीशन ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, एंगुलर पोजीशन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमको क्या पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है भाई -3/2t², ठीक है, एंड इट्स इनिशियल मूवमेंट, एट द इनिशियल मूवमेंट एंगुलर वेलोसिटी था 10 रेडियन, मतलब ω0 10 दिया हुआ है, ठीक है। वही अपना पुराना सवाल एक अपन ने किया था सबसे शुरू में, वैसे ही। एंड हैज एंगुलर पोजीशन ऑफ 1 रेडियन, मतलब θ0 भी है शुरू में, कुछ ना कुछ उसका, जैसे पहले अपना वो होता था ना, कुछ ना कुछ एंगुलर, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता था, वैसे कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल है इनका पहले से। तो अल्फा दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं dω/dt, जो कि होता ही है, और इक्वल टू दिया हुआ है जो उसके बराबर कर देते हैं, -3/2t² के बराबर कर देते हैं। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ऐसे लिखना है कि dω इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करना है बेसिकली, -3/2t² इंटू dt। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ω0 से ओमेगा तक और 0 से लेकर के t तक, ऐसा हमको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में तो स्पीड कुछ ना कुछ ω0 रही होगी ना, तो वही वाली बात होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा t³/3, ठीक है, और हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ω-ω0। अब सब कुछ हम लोग देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हम लोग को 1 सेकंड और 2 सेकंड में वैल्यूज पूछी गई, ऑप्शन को देख के समझ में आता है। तो सबसे पहले ओमेगा का इक्वेशन तो लिख लूँ, ओमेगा का इक्वेशन है ω0 माइनस t³/2, ऐसा कुछ है, लिमिट डालने के बाद। अब 1 सेकंड डाल के देखते हैं, और 10, अब 1 सेकंड डाल के देखते हैं, ये तो 10 था, ये 10 था पहले से, 10 - 1/2 मतलब 9.5 तो आ रहा है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी t = 1 सेकंड इज 9.5, तो सही है, तो 9.5 ये तो करेक्ट है ना। तो हो सकता है कि मल्टीपल करेक्ट हो, तो ये तो सही हो गया। अब हम लोग को थीटा की वैल्यू देखनी है, एंगुलर पोजीशन के बारे में भी बताना है, ठीक है, तो ये वाला तो सही हो गया। यहाँ पे t = 1 डाला ना हम लोगों ने, 9.5 आ गया। चलो ये बहुत समझ में आ गया। अब अपने को एंगुलर पोजीशन के बारे में बताना है, तो एंगुलर पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको dθ/dt लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख दो आप dθ/dt, और इसको लिख दो ω0 - t²/2, -t³/2 करते हैं अभी, एक मिनट। तो हम लोग लिखेंगे इसको dθ/dt इज इक्वल टू, लिख देंगे ω0 - t³/2। अब हम लोग ना इसको उधर ले जाएंगे, तो वही dθ, ये हो जाएगा थीटा माइनस θ0, जैसे यहाँ पर हुआ था, और ये हो जाएगा ω0 इंटू टी, और माइनस ये हो जाएगा t⁴ डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को देखना है, तो थीटा की वैल्यू जाएगी θ0 प्लस ω0 इंटू टी प्लस t⁴/8। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं,
तो थीटा नॉट तो 1 है, तो 1 रख दिया, प्लस ओमेगा नॉट की वैल्यू 10 है, 10 इंटू कितना सेकंड में बोल रहा है, 1 सेकंड में भी पूछ रहा है, 2 सेकंड में भी पूछ रहा है, 10 इंटू 1 तो ये 10 हो जाएगा, चलो 1 सेकंड में देखते हैं, 10 प्लस ये हो जाएगा 1/8, तो एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 80, 88, 89/8, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 80 - 1, तो ये 88 - 1 87/8 आ जाएगा, तो ये वाला भी सही लग रहा है, तो मेरे ख्याल से 2 सही है। अच्छा इनकरेक्ट बताना है, सॉरी इनकरेक्ट बताना है यार, ठीक है, तो भाई इनकरेक्ट बताना है तो हम लोग और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, 2 तो सही हो गया, चेक कर सकते हैं, ये वाला भी चेक करना पड़ेगा, तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी है t = 2 सेकंड भी चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डाल दो t = 2 डाल दो, तो ये हो जाएगा 8, देखो ये हो जाएगा 8, 8/2 हो जाएगा 4, 4 - 10 हो जाएगा 6, तो ये भी सही है, मतलब यही गलत होगा बस एक, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसमें हम लोगों को वही पूछा गया था, ठीक है, ओके, तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को जय माता दी बोल दीजिए। धन्यवाद आप सबका, आपका दिन शुभ हो।